Okay. So test 2 ka we have already discussed section A. Today we will discuss section B, and just to save time of you guys also and time of the whole class, what I'll be doing is I'll simply skim through the solution to help you better understand how to approach question from section B in the test 2. The same model answer is going to be available today. You may check your portal. By 6 p.m. it will be available in more organized form. Okay. And you may take the hard copy also whenever you come to the center. So I'll going to start with the first question, section B. How can we explain social change using Parsons structural functional paradigm? इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है? Parsons का structural functional paradigm. Okay. And then social change. These are the two keywords. So first you must explain what is structural functional paradigm, because only because of with the help of this you can explain change. Structural functional paradigm का मतलब क्या है? Theory. Paradigm means theory. And structural functionalism as a theory clearly says society consists of parts. Each part is performing some function. And when all these parts are performing their functions properly, then only society is maintaining equilibrium or balance. Okay. तो ये तो बेसिक पैराडाइम है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का, कि हर एक पार्ट का फंक्शन बताना, रिलीजन का, एजुकेशन का, फैमिली का, रिलीजन और लॉ का, इन सब का. अगर आप इस पैराडाइम को समझो, इन दिस पैराडाइम there is only scope for maintenance of system, that all the parts are working, functioning, that is how system is maintained in equilibrium. If system is always maintained, that means Parsons theory of functionalism or functionalism in general cannot explain change, because maintenance of system and change are two opposite things. And that is why the question is, how do we explain change? Is there any scope for change in this paradigm? Yes, there is a scope, and Parson was one of the first one to have explained it theoretically. So first we define structural functionalism, then we describe AGIL paradigm, okay, which is given by Parson. Then we can say AGIL paradigm explain how social system maintains social equilibrium. यानी कि आपको बस हल्का सा बताना होगा कि ये चार नीड्स होती हैं समाज की, चारों नीड्स को पूरा करने के लिए वी हैव 4 डिफरेंट ऑर्गन्स. अडेप्टिव नीड के लिए इकोनॉमिक ऑर्गन, इसके लिए पॉलिटिकल, इसके लिए जुडिशियल, एंड इसके लिए फैमिली, रिलीजन, स्कूल सिस्टम. When all these are working properly, system is maintained. So this paradigm explains how social system maintains social equilibrium. But this does not explain the change. So how did Parson deal with this problem? He was also seen as status quoist because of the same reason. Parson developed the theory of evolutionary universal, factors causing strain, and structural differentiation. ये तीन theories हैं जो आप पार्सन के सोशल चेंज को एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर सकते हो. एवोल्यूशनरी यूनिवर्सल, फैक्टर्स कॉजिंग स्ट्रेन, एंड स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन. ये तीनों सोशल चेंज को एक्सप्लेन करता है. ओके. फैक्टर्स कॉजिंग स्ट्रेन. जब समाज इक्विलिब्रियम में रहता है तो देयर आर सम फैक्टर्स which cause some strain, yani disturbance in the system. What are those factors? Those factors, all I've explained it in crash course also, but still we'll be explaining because test series में अलग students हैं. So factors कौन कौन से होते हैं जो समाज में के अंदर strain create करते हैं? थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि पार्सन में लोगों को प्रॉब्लम आती है. When 4 needs are fulfilled by 4 different organs, system is in equilibrium stage. Then some factors disturb the system. Factors disturbing the system. और उन उस डिस्टर्बेंस को हम बोलते हैं स्ट्रेन. फैक्टर कॉजिंग स्ट्रेन इन द सिस्टम. कौन कौन से होते हैं? न्यू टेक्नोलॉजी का आना कॉजेस डिस्टर्बेंस. जैसे एआई का आना विल कॉज डिस्टर्बेंस टू द सोसाइटी. मेनी पीपल मे फॉल आउट ऑफ लेबर मार्केट. न्यू आइडियाज का आना, जैसे imagine monarchy was there, suddenly a new idea cropped up, democracy, so it disturbed the system. Patriarchy was there, suddenly new idea came, feminism, it disturbed the system. Brahminical authority was there, Dalit movement developed, or caste equality as concept developed,
challenging the system. Buddhism developed, challenged the system with new ideas. Then we have some population or demographic factors causing disturbance in the system. ओके, पॉपुलेशन का बढ़ना, कम होना, यानी सेक्स रेशियो का स्क्यू होना, माइग्रेशन का आना, इन्फ्लक्स, एमिग्रेशन होना बहुत रैपिडली, एक्सोडस होना, टोटल फर्टिलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट, इन सब में रैपिड चेंजेस होना, दिस कैन ऑल्सो कॉज डिस्टर्बेंस टू द सिस्टम. एंड फोर्थ, फिजिकल फैक्टर्स. फिजिकल फैक्टर्स लाइक नेचुरल डिजास्टर्स का आ जाना, साइक्लोन, अर्थक्वेक, दे कैन ऑल्सो डिस्टर्ब सोसाइटी एज अ होल. ओके, फैमिली सिस्टम एज अ होल, स्टेट एज अ होल, लॉ सिस्टम में भी गड़बड़ एक्सपोज हो सकती है डिजास्टर्स के आने से. कोऑर्डिनेशन बिटवीन वर्कफोर्स या डिफरेंट रैपिड टास्क फोर्स में भी एक्सपोजर दिखता है, एक्सपोज हो जाती हैं वो सब प्रॉब्लम्स. सॉइल का एग्जॉस्ट होना, वाटर का डिप्लीट होना, ओशन का मेल्ट होना, मतलब ग्लेशियर का मेल्ट होना, ओशन लेवल का राइज होना, क्लाइमेट का चेंज होना, ये सब, ऑल दीज आर द फैक्टर्स दैट कैन कॉज डिस्टर्बेंस टू द स्टेबल सिस्टम. अब जब सिस्टम डिस्टेबलाइज होता है तो सिस्टम के अंदर ह्यूमन बॉडी जैसे प्रिंसिपल्स होते हैं. Human body would also adapt to the changing environment. तो system is also like human body. Organic analogy functionalism का जो basic वो है theoretical background. तो system would also adapt to these rapid changes. So if technology is coming in and it is causing unemployment, then there will be some regulation on technology by state. Okay, or there will be some integration of technology into different fields like education, economy. हर जगह टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाएगा और न्यू फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विल बी क्रिएटेड बाय द स्टेट. सो दिस इज अ कोपिंग मैकेनिज्म विद द लॉस कॉज्ड बाय न्यू टेक्नोलॉजी. ओके, इफ न्यू आइडियाज आर कमिंग अप, फेमिनिज्म के आने से अगर पेट्रियार्की वीकन हो रहा है एज एन आइडिया, सिस्टम इज गेटिंग डिस्टेबलाइज्ड, तो then again new laws, education system will be developed which is going to cater to women's interest equally and ensure that feminism as a way is not disturbing the society, rather women are integrated in a stabilized manner, okay, without causing conflict to the system. Same is the case with demographic factor. अगर माइग्रेशन की वजह से इशू हो रहे हैं तो फिर न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी आ सकती है, या फिर इमिग्रेशन के ऊपर पॉलिसी आ जाएगी, या माइग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए बॉर्डर काफी स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, पेट्रोलिंग हो जाएगी. मतलब यू वुड सी सिस्टम गेटिंग स्टेबलाइज्ड और re-equilibrating tendency getting developed within the system to cope up with the emerging challenges. Okay, फिजिकल फैक्टर्स, अगर साइक्लोन वाइक्लोन ये सब आ रहा है, कोविड आ गया, तो अगेन सिस्टम विल गेट री-इक्विलिब्रिएटेड. जो ट्रेन है वो हॉस्पिटल बेड्स का काम करेगी, स्कूल हॉस्पिटल बन जाएगा, ठीक है, ड्यूरिंग कोविड. या फिर मास्क फ्री कर दिए जाएंगे, या फिर प्रधानमंत्री कौन सी योजना थी जो कि विच हेल्प पीपल गेट, गरीब कल्याण योजना, वो इस तरह की पॉलिसी आ जाएगी टू हेल्प पीपल कोप अप विद देयर बेसिक नीड्स. अगेन री-इक्विलिब्रेटिंग टेंडेंसी, यानी सारा कुछ डिस्टर्बेंस के बाद भी सिस्टम वापस किसी तरह स्टेबलाइज होके खड़ा हो जाएगा. ओके, सो दिस विल बी न्यू इक्विलिब्रियम. But in this whole process of system losing stability due to these factors and gaining stability once again, in the whole evolution process, system might have developed some specialized institutions, okay, to deal with such problems in future. Okay, तो वो स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन क्या क्या हो सकते हैं? कोविड आया जिसने डिस्टर्बेंस क्रिएट करी, तो कोविड टास्क फोर्स आ गया. ओके, वैसे ही अगर डिजास्टर आ रहे हैं रेकरिंग, अर्थक्वेक हो रहा है, साइक्लोन आ रहा है, लैंडस्लाइड हो रही है, तो फिर डिजास्टर रैपिड क्या कहते हैं, रैपिड डिजास्टर टास्क फोर्स डेवलप कर दी जाएगी, या फिर एनडीआरएफ बना दिया जाएगा. अगेन एन इनिशिएटिव बाय स्टेट टू डील विद द रिहेबिलिटेशन ऑफ द पीपल हु वर डिजास्टर स्ट्रिकन. ओके, सो यानी कि जब भी कुछ डिजास्टर होएगा, कोई अनस्टेबिलिटी होएगी, समाज के अंदर स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन डेवलप होंगे आने वाले टाइम के लिए टू डील विद सच प्रॉब्लम. साइबर क्राइम बढ़ेगा तो साइबर पुलिस आ जाएगी, स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन. सो ये आपको दिखाना है. और ये स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन का आना, वैसे ही आप समझ लो माइग्रेशन बहुत रैपिडली हो रहा है, फैमिली सिस्टम वीक होते जा रहा है, पीपल आर leaving to America, leaving their family, traditional bonds, etc. Then new form of family will be developing. Family will, start taking new forms. Okay,
एम्प्टी नेस्ट फैमिली जिसको बोला जाता है अमेरिका में, वेयर पीपल्स आर लिविंग, students are leaving their family and studying abroad and settling there, so only parents are left. That is called empty nest. Okay, so joint family as a concept or traditional nuclear family as a concept may not be there, something like this. Okay, so ये जो specialized institutions का आना है, इसी स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन के राइज को हम समझाते हैं स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन के थ्योरी के थ्रू. तो स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन explains rise of specialized institutions to deal with emerging developments in society. ओके, तो पुलिस से साइबर पुलिस का आना भी एक चेंज दिखाता है, एनडीआरएफ का आना भी एक चेंज दिखाता है, टास्क फोर्स का आना कोविड से रिलेटेड एक चेंज दिखाता है. ठीक है, उसी तरह साइंस टेक के अंदर इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बढ़ना ड्यू टू रीसेंट इनोवेशन एंड रीसेंट चेंजेस इन द टेक्नोलॉजिकल फ्रंट, वो भी एक चेंज दिखाता है समाज में. ओके, सो ये इन सब चीजों को आपने लिखना है. नाउ व्हाट इज एवोल्यूशनरी यूनिवर्सल? तो दो चीजें हम समझ चुके हैं, फैक्टर कॉजिंग स्ट्रेन, स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन. थर्ड इज एवोल्यूशनरी यूनिवर्सल. दिस आई विल एक्सप्लेन टू यू इवन यूनिट 10 सोशल चेंज वाला जो चैप्टर है, उधर भी हमें काम आता है. ओके, एवोल्यूशनरी यूनिवर्सल एक थ्योरी है जो कि पार्सन ने डेवलप करी टू एक्सप्लेन दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड society evolves in a patterned manner. Universally, there is one scale of evolution. Okay, all over the world in a patterned manner. और पैटर्न क्या है किसी भी समाज का? हर एक समाज जो है वो शुरू होता है आर्काइक सोसाइटी से. सेकेंड फेज को बोलता है इंटरमीडिएट सोसाइटी. और थर्ड इवॉल्व्ड स्टेज को वो बोलता है समाज के एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी. तो पार्सन्स ने अपने यूनिवर्सल एवोल्यूशनरी मॉडल में समाज के तीन फेज दिखाए हैं एवोल्यूशन के. ओके, डिफरेंस क्या है इन तीनों फेज में? सिर्फ एक, अडेप्टेशन कैपेसिटी का और स्पेशलाइजेशन का. ओके, द ओनली डिफरेंस बिटवीन थ्री इज वन, अडेप्टेशन कैपेसिटी, एंड सेकंड डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन. इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं. ओके, पार्सन इज ट्राइंग टू से अमेरिका इज द एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी. क्योंकि ही इज अमेरिकन तो ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट अमेरिका. अमेरिका इज एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी, which means America has maximum adaptive capacity to deal with any kind of strain. कोई भी स्ट्रेन आएगा अमेरिकन समाज में, अमेरिका फटाफट रिस्पॉन्ड करेगा. लाइक जैसे कोविड आया तो सबसे पहले कंट्री कौन सी थी दुनिया में कोविड से डील करने वाली? अमेरिका ही थी. ओके, कोई भी किसी टाइप का वॉर सिचुएशन होएगा तो अमेरिका विल बी द फर्स्ट वन टू रिस्पॉन्ड टू इट. ओके, तो अमेरिका का जो रिस्पॉन्स रेट है बहुत फास्ट है. एंड उस वजह से उसने बोला अडेप्टेशन कैपेसिटी सबसे ज्यादा अमेरिका की है और इसलिए वो एडवांस्ड सोसाइटी मानी जाएगी. ओके, और कोई भी आर्काइक सोसाइटी मतलब आप मान के चलो वो सोसाइटी जो कि बहुत नेसेंट स्टेज में, अग्रेरियन स्टेज में है, जिसके पास इंफॉर्मेशन कैपेसिटी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, ग्रोथ नहीं है, पॉपुलेशन लिमिटेड है, नीड्स लिमिटेड है लोगों की, एक ऐसा मॉडल. ओके, इंटरमीडिएट मतलब अ सोसाइटी विच इज इन ट्रांजिशन टू व्हाट वी कॉल एज एडवांस्ड इंडस्ट्रियल. ओके, और डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, जैसे जैसे आप समाज में आगे बढ़ते हो समाज के अंदर वैसे वैसे स्पेशलाइज यूनिट्स डेवलप होते रहेंगे. यानी कि सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन स्ट्रक्चरल हमें दिखेगा एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, क्योंकि इस सोसाइटी के अंदर हर प्रॉब्लम से डील करने के लिए वी विल हैव स्पेशलाइज्ड यूनिट. ओके,
टेररिज्म से डील करने के लिए अलग टास्क फोर्स, ड्रग्स से डील करने के लिए अलग टास्क फोर्स, ओके, माइग्रेशन रिलेटेड क्राइम से डील करने के लिए अलग टास्क फोर्स, मतलब हर एक के लिए अलग, एक ऐसा नहीं कि एक पुलिस है सबसे डील कर रही है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का डिग्री बहुत तेज होगा और बहुत रैपिड होगा और बहुत कॉम्प्लेक्स होएगा। सो द डिफरेंस बिटवीन these three is only these two. We will have specialized units for each problem in the advanced society, and here in archaic society there will be only two institutions. इसको अगर मुझे डायग्राम बनाना हो तो हम ऐसे बोलेंगे, आर्काइक सोसाइटी मतलब दिस इज आर्काइक सोसाइटी, दिस इज इंटरमीडिएट सोसाइटी, एंड एडवांस इंडस्ट्रियल मतलब दिस। इसका मतलब ये होता है कि आर्काइक सोसाइटी के अंदर देर विल बी ओनली वन इंस्टीट्यूशन, उसका नाम होगा कम्युनिटी, बस। जैसे हम लोग सब पहले इंगल्स के हिसाब से कम्युनिटी थे, ओके, कम्युनिटी ही पुलिसिंग करती थी, कम्युनिटी ही आपस में शादी करती थी, कम्युनिटी ही लॉ बनाती थी, सब कुछ कम्युनिटी का ही रिलीजन होता था अपना। तो कम्युनिटी वॉज दी ओनली ऑर्गन। समाज फिर धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, उसके अंदर फिर स्प्लिट अप आया। स्प्लिट अप क्या आया कि चर्च अलग हो गया और फैमिली अलग हो गई। स्टेट तो चर्च ही था, चर्च वॉज द स्टेट, ओके, चर्च अलग फैमिली अलग। और ये कहां से निकले? कम्युनिटी में से ही। इट्स लाइक अमीबा, जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है वो फिजन हो रहा है। फिर और एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या होएगा, अब हर एक चीज के लिए अलग लॉ, के लिए अब स्टेट आ गया, चर्च अलग, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, इसको सेकुलरिज्म बोल देते हैं मॉडर्न सोसाइटी में। तो चर्च अलग हो गया, ठीक है, स्टेट अलग हो गया, इकोनॉमी अलग हो गई, ठीक है, लॉ ये सब अलग हो गया, एजुकेशन अलग हो गया, ठीक है। तो यानी ये हमें दिखता है एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर, इसी को आगे वो एजीआईएल बोलता है, जहां पे इकोनॉमी इधर डालते हैं, मतलब ए वो आप प्लेस कर लोगे उस हिसाब से, ठीक है। So this is all about it. Not the difference between this idea, actually, differentiation. Parson has borrowed from Durkheim only. Durkheim talks about specialization of labor. Division of labor means specialization of labor. Parson talking about specialization not of labor but of institutions. ओके, तो यानी डरखाइम हैज आल्सो टॉक्ड अबाउट डिफरेंशिएशन, बट डिफरेंशिएशन उसके लिए लेबर के लेवल पर है कि कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड रोल्स आ रहे हैं, इंजीनियर अलग, आईएएस अलग, आईपीएस अलग, आईआरएस अलग, इन सब के इसमें इंटरडिपेंडेंस होएगा, ओके, एक लॉन्ग ड्रॉन चेन बनेगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टेट अलग, इकोनॉमी अलग, स्टेट के अंदर अलग अलग माइक्रो ऑर्गन्स, इकोनॉमी के अंदर एग्रेरियन अलग, इंडस्ट्रियल अलग, सर्विस अलग, नॉलेज अलग, इन सब में फिर इंटरडिपेंडेंस होएगा, ओके, तब जाके समाज स्टेबल। तो आइडिया वहीं से ड्रॉ किए। तो ओवरऑल हमने चेंज देख लिया है, चेंज, फैक्टर कॉजिंग स्ट्रेन कॉज चेंज, देन दिस evolutionary universal theory also explain change of society, this explain change within society, and this explains change of society। ये change of society है और ये है change in society, ठीक है। हाँ जी, तभी समाज स्टेबल रहेगा ना। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई डाउट यहाँ पे आपको? आगे बढ़े। लास्ट में आप एक क्रिटिक डाल सकते हो कि भाई चेंज तो एक्सप्लेन कर पा रहा है लेकिन फिर भी ही स्टेटस कोइस्ट, because he is not able to explain despite these changes why some problems continue to persist। अनएम्प्लॉयमेंट से डील करने के लिए स्पेशलाइज्ड विंग आ गया या पॉलिसी आ गई तो भी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? करप्शन से डील करने के लिए लोकायुक्त आ गया है तो भी करप्शन क्यों है? इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता पार्सन, ओके। लेट अस नाउ गो इनटू सेकंड क्वेश्चन। हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन रेस एंड एथनिसिटी? आर द बाउंड्रीज ब्लर्ड? डिस्क्राइब, ओके।
इसमें whenever you get a question on differentiation, always try to make a table. Okay, it is very helpful for evaluator to check, examiner to check, and it will also help you to write only what is relevant and not construct any story. Okay, so रेस जो है यूजुअली हम ऐसे बोलते हैं, इट डिस्क्राइब्स फिजिकल ट्रेट्स. रेस मतलब फिजिकल ट्रेट्स, यानी कि स्किन कलर, आपका हेयर, फेशियल, आपका बॉडी टाइप, ये रेस दिखाता है. एथनिसिटी क्या दिखाता है? आपके कल्चरल ट्रेट्स. आप कौन से रिलीजन फॉलो करते हो, किस नेशन से आते हो, आप क्या बोलते हो, लैंग्वेज, कस्टम्स आपके क्या है, खाने का पीने का स्टाइल क्या है, ये आपकी एथनिसिटी है. ओके. रेस हमेशा इनहेरिट की जाती है जनरेशन बाय जनरेशन. इट इज बायोलॉजिकल इन नेचर. ओके. Ethnicity is always learned. It is not inherited. This is inherited. This is learned. Okay. It is more like ascriptive. This is more like achieved. Okay. And it is maintained through some activities like festivals के through हम अपना language, custom, food, religious beliefs को बार बार project करते हैं, reaffirm करते हैं. Festivals के through, religious gatherings के through, celebrations के through, symbolic items के through like dress, food, craft, हम अपनी ethnic, इसे कहते हैं doing ethnicity. That you are performing ethnicity. Okay. Then we see race is always unique. Okay. One person is ascribed one race, but the same person may be ascribed multiple ethnic identities. ठीक है. So जैसे कल मैंने कहीं कोई ट्विटर पे किसी का कोई कमेंट था, ऐसे देखा, ध्यान आया मेरे को, किसी ने लिखा हुआ था कुछ, जगजीवन, बाबू जगजीवन राम जो थे, वो अपने आप को बिहारी तो बोलते थे, बट द्रविडियन भी बोलते थे. तो अब ये क्या हुआ, मतलब बिहारी और द्रविडियन, ये शो करता है कि आप ना मल्टीपल एथनिक आइडेंटिटी में आ सकते हो, बट कोई इंसान अपने आप को ही नहीं बोल सकता मैं ब्लैक भी हूं और व्हाइट भी. हाँ, कोई ये जरूर बोल सकता है मैं बिहारी भी हूँ, द्रविडियन भी और ब्राह्मण भी, लेकिन कोई ये नहीं बोल सकता मैं ब्लैक हूँ और व्हाइट भी और ब्राउन भी. तो इंसान का रेस एक ही रहता है, उसकी एथनिक आइडेंटिटीज मल्टीपल हो सकती हैं. ओके. इंडिविजुअल बिलोंग्स टू वन रेस, ये हम समझ गए हैं. इंडिविजुअल में बिलोंग टू मल्टीपल एथनिक ग्रुप्स. फाइन. Race is often used as marker of superiority or inferiority or to mark hierarchies. तो रेस भली डिफरेंट हो, बट समहाउ दीज डिफरेंसेस कैरी ट्रेसेस ऑफ हायरार्की. कहीं ना कहीं एक रेस को सुपीरियर हम मानने लग जाते हैं, दूसरी रेस को इंफीरियर. एथनिक आइडेंटिटीज में ये चीज नहीं. वी अप्रिशिएट और सेलिब्रेट डाइवर्सिटी. वी डोंट convert them into hierarchy, or we don't see one ethnic group claiming to be superior from another. Okay. And if that happens, it will always be seen as racial traits getting developed in ethnic identity. Okay. अब बाउंड्रीज ब्लर कैसे इनके बीच में, हमने डिफरेंस दिखाए, अब हमें दिखाना है ब्लर्ड हैं, खास डिफरेंसेस नहीं है. पहला तो ये कि भाई दोनों के दोनों आर सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडियाज. ओके. which means both are social construct, means they are not based on any objective biological or genetic differences but are products of social and cultural categorization. तो आप एथनिसिटी को तो आप समझ गए होगे कि इट इज प्रोडक्ट ऑफ सोशल कल्चरल. रेस कैसे सोशल कल्चर है, जबकि अभी हमने ऊपर लिखा है इट इज प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रेट्स. क्योंकि जैसे क्रैश कोर्स की क्लास में भी मैंने बोला था कि जो जिसको हम यूएस के अंदर ब्लैक व्हाइट ब्राउन कर रहे हैं, उन्हीं आदमियों को, सेम उस ब्लैक को ब्राजील के अंदर ब्लैक नहीं बोला जाएगा. ब्राजील के अंदर ही वुड बी सीन एज लाइट ब्लैक और ग्रेइश ब्लैक और डार्क ब्लैक, मतलब उसके भी अलग पैटर्न्स और कलर्स हैं. ओके. और उसके अपने, दे वुड आल्सो हैव देयर ओन लिंगोस फॉर इट. मोरेटा, पराटा, ऐसे करके वो कुछ लोकल नेम होते हैं, वो उसको ब्लैक नहीं बोलेंगे, कुछ अलग लिंगो देंगे. साइंटिस्ट वुड नॉट कॉल इट ब्लैक, दे वुड कॉल इट नीगरॉइड. ओके. तो सबके अपने अपने टर्म्स बने हुए हैं. और नीग्रॉइड, सारे भी नीग्रॉइड, एक नीग्रॉइड अपने आप को नहीं बोलेंगे, बोलेंगे नहीं दिस इज ग्रेइश ब्लैक, दिस इज परेटा, दिस इज मोरेटा, दिस इज नॉट ऑल नीग्रॉइड. ओके. तो है तो इवेंचुअली डिफरेंसेस सबके सब सिर्फ सोशली कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड. ओके. वो दोनों की दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी आइडेंटिटी को. दे प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग identity and self perception, which means in both cases, be it ethnic identity or racial identity, you would see people identifying themselves with a group. Okay.
ब्लैक हो, द्रविडियन हो, या फिर आर्यन हो, या वाइट हो, जो भी एक ग्रुप आइडेंटिटी उनकी बाहर आती है। थर्ड, इम्पैक्ट ऑन सोशल इंटरैक्शन भी होता है। इन बोथ केसेस, एथनिक और racial identity, we see stereotypes, prejudices, discrimination taking place on the basis of which ethnic identity do they belong to or racial identity do they belong to. Social distancing दोनों में दिखता है हमें. People somehow exclude people from certain ethnic groups or exclude from certain racial groups in America or in India. वो हमें stereotypes दोनों जगह दिखते हैं. Okay, so this is how boundary between the two gets blurred. Okay. Now next is poverty limited to lack of wealth alone? Discuss other dimensions of poverty. So इसको सिंपली इतना समझ लेते हैं कि यूजुअली हम पावर्टी को समझते हैं डेप्रीवेशन ऑफ बेसिक रिसोर्सेस। ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है पावर्टी का, डेप्रीवेशन ऑफ बेसिक रिसोर्सेस। अगर आप इकोनॉमिस्ट से पूछोगे तो वो इकोनॉमिस्ट मेनली, और वो भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की अगर मैं बात करूं, ही विल से बेसिक रिसोर्स मींस इनकम और वेल्थ। ओके, उसके लिए बेसिक रिसोर्स मतलब सिर्फ पैसा होता है। ओके, वेल्थ एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के लिए। बट इफ यू think of people like Amartya Sen, who are not seen as classical economists, but behavioral economist और welfare economist, तो वो अमर्त्य सेन के लिए बेसिक रिसोर्स का मतलब क्या होगा? आपकी काबिलियत। काबिलियत, ये काबिलियत क्या है? वो बोलते हैं कैपेबिलिटी है तो वेल्थ आएगी। तो कहते हैं वेल्थ इज नॉट द एंड, वेल्थ इज मीन्स टू अनदर एंड। और अनदर एंड क्या होता है जिससे हम अपने आप को फुलफिल करते हैं? वो होता है पढ़ाई, अच्छी हेल्थ, स्किल, एक्सपोजर। ये सब चीजों से ही को में ही तो हम पैसा लगाते हैं। तो पैसे की कमी नहीं, इन चीजों की कमी इज पावर्टी। और कैपेबिलिटी उन्हीं चीजों को पाने की जिससे पैसा आएगा। और कैपेबिलिटी मतलब कि आपकी हेल्थ, एजुकेशन, लिटरेसी, स्किल और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिसेबल्ड। अगर ये सब चीजें प्रोवाइड की जाएं समाज में, तो यानी लोगों के पास काबिलियत आएगी पैसा कमाने की, और वो इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल जी सकेंगे। दे विल बी फ्री फ्रॉम द बंडल ऑफ अनफ्रीडम्स। इन सब का ना होना इज मेकिंग बंडल ऑफ अनफ्रीडम। उससे फ्री होने के लिए स्टेट हैज ड्यूटी टू प्रोवाइड सम इनपुट और बेसिक रिसोर्स थ्रू डिफरेंट स्कीम्स। तो हमने दो लोग के नजर से देख लिया, पावर्टी किसी के लिए डेप्रीवेशन ऑफ कैपेबिलिटी, किसी के लिए डेप्रीवेशन ऑफ वेल्थ। और भी कई लोग हैं, वो बोलते हैं बेसिक रिसोर्स क्या है? बेसिक रिसोर्स है इंफॉर्मेशन। ओके, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन पावर्टी, और इसको कहते हैं केपेबिलिटी पावर्टी। ओके, इंफॉर्मेशन किस चीज का? किसी भी चीज का, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी का, ठीक है, हेल्थ केयर के बेनिफिट्स क्या होते हैं, इन इतनी छोटी छोटी चीजों का इंफॉर्मेशन लोगों के पास नहीं होता। अच्छा खाना किसे बोलते हैं, न्यूट्रिशियस फूड क्या होता है, इन सब का बेसिक इंफॉर्मेशन लोगों के पास नहीं है। ओके, सो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना लोगों को, स्मार्टफोन का एक्सेस दिलाना और इंटरनेट को फ्री करना, या रूरल पेनिट्रेशन बढ़ाना, इज गोइंग टू हेल्प पीपल टू फ्री देमसेल्व्स ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन पावर्टी। और बेसिक रिसोर्स क्या है? कुछ लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज द बेसिक रिसोर्स, इसको बोलते हैं एनर्जी पावर्टी। अगर लोग के पास बिजली नहीं है तो इंटरनेट कैसे आएगा? ठीक है, मोबाइल चार्ज नहीं होएगा, इंटरनेट कैसे आएगा? ठीक है, सो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, वो सबसे, तो वहां पे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम्स की आप बात कर सकते हो कि गवर्नमेंट ये सब करती है ताकि वो बिजली से उनका पानी वानी आए, खाना वाना बने, इंटरनेट चलाएं, कंप्यूटर चलाएं और इंफॉर्मेशन पाएं, काबिलियत पाएं, उसके बाद पैसा आए। ठीक है, फिर एक रिसोर्स होता है नीट एंड क्लीन एयर।
clean environment is also a resource. ये भी एक रिसोर्स है और लोग के पास ये भी नहीं है. इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल पॉवर्टी. ओके. क्लीन इन्वायरमेंट का फायदा क्या है? इफ यू हैव क्लीन इन्वायरमेंट तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ऑक्सीजन लेवल सब बढ़िया रहेगा. हेल्थ अच्छी रहेगी तो पढ़ लिख पाओगे, स्किल डेवलप होएगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, तो आप उसको कैपिटलाइज कर सकोगे अपने लाइफ चांसेस बढ़ाने में. सो इसका भी उतना ही रोल है. ओके. तो इन चीजों को वैसे ही एक और होता है एक रिसोर्स, विमेन के केस में बोला जाता है सैनिटेशन किट. इसकी कमी भी होती है विलेजेस में, और सैनिटेशन किट ना होने की वजह से वुमेन की मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है. शी इज नॉट एबल टू गो टू वर्क प्लेस, शी इज नॉट एबल टू गो टू स्कूल और कॉलेज, जस्ट बिकॉज देर इज लैक ऑफ सैनिटेशन किट. और इसको बोलते हैं पीरियड पावर्टी. ठीक है. तो दिस मीन्स पावर्टी इज नॉट जस्ट अबाउट लैक ऑफ वेल्थ. और एक बेसिक रिसोर्स होता है माहौल. माहौल भी एक रिसोर्स है. अगर माहौल ही नहीं मिला तो गरीब ही रह जाएंगे. माहौल किस चीज का? एस्पिरेशन का माहौल. तो उसे बोलते हैं कल्चर ऑफ पॉवर्टी. सो बेसिक रिसोर्स इज culture, and many people are living in such culture where they are not thinking of tomorrow, they are living for today. Okay. They are not even thinking of investment, they are thinking of consuming today. तो ऐसे माहौल में इंसान अमीर कैसे बनेगा या फिर कैपेबिलिटी कैसे हासिल करेगा? उसका एस्पिरेशन लिमिटेड हो जाएगा. कल्चर ऑफ पॉवर्टी. ऑस्कर लुइस. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट इट. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट पे. Manifest and latent function of caste census. How to approach this question? We must explain the meaning of manifest function and then latent function and then briefly describe what is caste census. पहले तो ये तीन बेसिक डेफिनेशनल एस्पेक्ट कवर हो जाए, उसके बाद फिर एक सब हेडिंग बनेगी मैनिफेस्ट फंक्शन ऑफ कास्ट सेंसस. ओके. और ये सब की डेफिनेशन एक लाइन में आएगी मैक्सिमम. ठीक है. मैनिफेस्ट फंक्शन जिसके लिए बनाया गया है कास्ट सेंसस, वो पर्पस क्या है? ऑब्जेक्टिव पर्पस इन्यूमरेशन ऑफ कास्ट टू अंडरस्टैंड द डिग्री ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स अमंग डिफरेंट कास्ट. इसी के लिए बनाया गया है. दूसरा बेसिक पर्पस क्या है? टू मेक टारगेटेड पॉलिसी फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ कास्ट ग्रुप्स. once you identify by there is unequal distribution of resource among caste, then you make targeted policy. This is also the basic purpose. Third purpose is to revise reservation policy for caste groups. तो रोहिणी कमीशन cannot also make targeted recommendation without caste census. ओके. तो ये तो बेसिक मैनिफेस्ट फंक्शन हो गई. अब यहाँ पे बात नंबर ऑफ पॉइंट्स की नहीं है, बस अगर आप इतना भी बता रहे हो ना, फर्स्ट भी वो भी आपने मैनिफेस्ट बता दिए. ठीक है ना. ऑब्जेक्टिव तो एक ही रहते हैं, उसके सब टारगेट्स हो सकते हैं फिर अलग अलग. लेटेंट फंक्शन क्या है? कास्ट कॉन्शियसनेस तो बहुत बेसिक चीज है, हम सब बता ही देंगे. हम सब लोग के अंदर हमारी कास्ट आइडेंटिटी विल बिकम द मास्टर स्टेटस हम लोग का. हु आर वी? इंजीनियर और आईएएस ऑफिसर से पहले हम कुर्मी कोयरी जाट हो जाएंगे. ओके. पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट होगा. दिस अगेन यू कुड इजीली राइट. ओके. वोट बैंक जो है वो क्लियरली विजिबल हो जाएंगे. विच कास्ट ग्रुप हैज मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स और एजुकेशन, तो अदर कास्ट ग्रुप्स वुड इजीली मोबिलाइज अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप. सोशल मूवमेंट्स आ जाएंगी वहीं से. जैसे नॉन ब्राह्मण मूवमेंट डेवलप हुई थी इंडिया में सिर्फ और सिर्फ व्हेन census by Britishers revealed that most of the beneficiary of education bureaucracy are upper caste Hindu men. Then non-Brahmin came out on streets, revolted against Brahmins overrepresentation. That is how non-Brahmin started gaining reservation for the first time South India में. Okay. फोर्थ, डिविसिव टेंडेंसीज आ जाएंगी. फिसी पैरस टेंडेंसीज डेवलप हो जाएंगी. जीएस घुरी ऐसे बोलते हैं. समाज जो है कास्ट 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 पेट्रियोटिज्म डेवलप हो जाएगा लोगों के अंदर. ओके. दिस इज ऑल अबाउट इट. एंड नेक्स्ट इज फोर्डिज्म की मेरिट और डीमेरिट. नाउ फोर्डिज्म के बेसिक फीचर्स पहले हमें पता होने चाहिए.
ये मैं बता देता हूँ। देखो, दो फिलोसफीज हैं, एक तो है टेलरिज्म, और टेलरिज्म का ही जो एप्लीकेशन है उसको बोलते हैं फोर्डिज्म। ओके, वैसी एक फिलॉसफी है मेयोइज्म, और उसी का जो एप्लीकेशन है उसको बोलते हैं टोयोटिज्म। ठीक है, ये दोनों कार की कंपनीज हो गई, और ये दोनों वर्क फिलोसफी। अब टेलरिज्म को अगर हम देखें, टेलरिज्म सिंपली इतना ही समझाता था दैट Taylor was basically a person who was concerned only with one thing. He was hired only for one objective: how to make workplace more efficient, how to have mass production, how to cut down the cost of goods, how to enhance consumerism among the people. इन सब चीजों को उसने जवाब देने के लिए मैनेजमेंट और वर्क प्रोडक्शन प्रोसेस को साइंटिफिकली समझने की कोशिश करी. Then he understood, if you divide the task into multiple parts, assign different individuals in each part, you will see productivity of the work getting very high and efficiency also very high. अगर एक काम को आप 10 में बांट दो और वो 10 लोग हर रोज वही कर रहे हैं, तो वो एक काम का करने की स्पीड बहुत कम हो जाएगी और प्रोडक्शन का लेवल बहुत बढ़ जाएगा. ओके, ये टेलर के छोटे छोटे प्रिंसिपल है जो उसने बताए. इन प्रिंसिपल्स को वो बोलता है सुपरवाइज करने के लिए मैनेजरियल क्लास ऊपर होनी चाहिए, जो कि टास्क को डिवाइड करेगी और सुपरवाइज करेगी, लोग अपना काम टाइम पे करते हैं. ये सबसे खुश होकर हेनरी फोर्ड के नाम के आदमी ने कार इंडस्ट्री में ये सारे प्रिंसिपल को एज इट इज लगा दिया. वहां से फोर्डिज्म आ गया, और इसने स्पेशली टेक्नोलॉजी पे काम किया मास प्रोडक्शन के लिए. असेंबली लाइन इन दी कार इंडस्ट्री, बाकी सब सेम वही सेटअप, वर्कर्स को एकदम रेजिमेंटेड टास्क में डिवाइड कर दिया. एक एक पार्ट पे काम कर रहे हैं लोग, मास प्रोडक्शन हो रहा है कार का, एफिशिएंसी हो रही है, कॉस्ट कट हो रहा है. और कंज्यूमरिज्म बढ़ाने के लिए फोर्ड ने वर्कर्स की सैलरी बढ़ा दी, $5 कर दी उस टाइम के हिसाब से, 1910 के हिसाब से, जो कि बड़ी बात थी, क्योंकि फोर्ड मानते थे मास प्रोडक्शन फेल हो जाएगा अगर मास कंजम्पशन ना हो. तो मास कंजम्पशन शुरू होएगा अगर हम अपने फैक्ट्री के वर्कर्स को सैलरी बढ़ाएं, तब वो कंज्यूम ज्यादा करेंगे. ओके, उनको देखकर उनके दोस्त डेप्रिवेशन फील करेंगे, वो भी चाहेंगे हमारे यहाँ के मालिक भी हमारी सैलरी बढ़ाए, कंज्यूमरिज्म अपने आप आएगा समाज में. ओके, ये तो हो गया फोर्डिज्म. अब फोर्डिज्म के अपने फायदे हैं कुछ इस फिलोसफी के, और अपने कुछ नुकसान. अब उस फायदे नुकसान को समझते हैं. पहला तो मास प्रोडक्शन हम समझ चुके हैं. Second, long-term commitment to workers. This is also something that he introduced. He said, my workers, in order to retain my workers, I will engage them in a trade union system and I will offer them some incentives too. Okay, long-term commitments को बढ़ाए रखने के लिए. एंड वेजेस को भी उसने बढ़ा दिया. प्रोडक्टिविटी अगर आपकी ज्यादा रहेगी, आपका हम तनख्वाह भी ज्यादा बढ़ाएंगे. एंड थर्ड फीचर इज कलेक्टिव बार्गेनिंग अग्रीमेंट, ट्रेड यूनियनिज्म, अग्रीमेंट बिटवीन फर्म्स एंड यूनियंस ऑन वर्किंग कंडीशन, वेजेस, सीनियरिटी. तो ये बड़ी बात थी उस टाइम के लिए. इसके डीमेरिट्स क्या हैं जिसकी वजह से फोर्डिज्म चल नहीं पाया दुनिया भर में और टोयोटिज्म ने टेक ओवर कर लिया? फोर्डिज्म सिस्टम के साथ ये प्रॉब्लम थी कि सिर्फ एक ही टाइप ऑफ प्रोडक्शन डेवलप हो सकता था असेंबली लाइन सिस्टम में, स्पेशलाइजेशन नहीं थी. सिर्फ एक ही टाइप की गाड़ी निकलेगी ब्लैक कलर की, उसी के लिए सिस्टम डिजाइन था. सो इट वाज डोमेस्टिक ओरिएंटेड एंड कुड नॉट सर्व ग्लोबल डिमांड. ग्लोबली तो लोगों की डिमांड थी अलग अलग कार की, अलग अलग मॉडल्स की, नए लेटेस्ट उसकी एक्सेसरीज की. वो फोर्ड पूरा नहीं कर पाया. सेकेंडली, क्योंकि यूएस वाज वेरी मच ओपन टू इंपोर्ट ऑल्सो, मच मोर ओपन इकोनॉमी देन अदर कंट्रीज. उस टाइम के इंपोर्टेड गुड्स में जर्मनी और जापान की गाड़ियां बहुत पॉपुलर होने लग गई लोगों के अंदर, बिकॉज पीपल स्टार्टेड गेटिंग एक्सपोजर टू वेरिएंट्स ऑफ कार. जर्मन ब्रांड और जापानीज ब्रांड ने टेक ओवर करना शुरू किया. थर्ड, इट विल हेल्पफुल ओनली टू प्रोड्यूस स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स. हम समझ चुके हैं वन प्रोडक्शन लाइन वाज एस्टेब्लिश्ड, इट वाज क्वाइट रिजिड टू ऑल्टर अ प्रोडक्ट. Fourth, it was good for mass production and consumption, but could not cater to individual customers and different customized needs. वो हम समझ चुके हैं. High wages to labor led to its demise. ये भी इसका रीजन था, क्योंकि अब वर्कर्स को ज्यादा तनख्वाह दे रहा है, तो इस वजह से क्या हुआ, ही कुड नॉट compete with companies where cheap
लेबर वॉज एम्प्लॉयड। ओके, सो ओवरऑल इसका जो प्रॉफिट है वो कट होने लग गया वीजा वी द कंपनी जिनका प्रॉफिट कट नहीं हुआ था, चीप लेबर एम्प्लॉयड थे। दिस वॉज ऑल द डीमेरिट ऑफ फोर्डिज्म, मेजरली दिस कस्टमाइजेशन और इंडिविजुअल पर्सनलाइज नीड्स का कोई स्कोप नहीं है, कॉम्पिटिटिव नहीं था बिकॉज ऑफ हाई वेजेस एंड ग्लोबल डिमांड, ग्लोबल मार्केट को वो सर्व नहीं कर पा रहा था। दिस वॉज द डीमेरिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ आर हायरार्की एंड एक्सक्लूजन द मेजर impediment in the transformation of societies? Fine. Here the keywords are hierarchy, exclusion, and then transformation of societies. ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में एक मॉडल होना चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर ऑर्गेनाइज नहीं दिखेगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी अगर मैं अपने दिमाग में मॉडल बनाऊं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी मतलब मेरे दिमाग में होना चाहिए क्लोज से ओपन होना। ओके, समथिंग लाइक दिस, क्लोज्ड से ओपन होना, एक ट्रांसफॉर्मेशन को हम दिखा सकते हैं। ओके, और कोई भी समाज क्लोज्ड सिस्टम से ओपन सिस्टम नहीं बन पा रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट? हायरार्की एंड एक्सक्लूजन, विच आर द इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट मतलब कि रोड ब्लॉक है ये, इनकी वजह से समाज ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा। यानी कि मुझे दिखाना है कि क्लोज सिस्टम से ओपन सिस्टम नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ हायरार्की एंड एक्सक्लूजन। अब सवाल उठता है हायरार्की कौन सी? डेफिनेटली any system is not able to become open only when the system consists of groups which are simply based on differences but are hierarchized. हमने जैसे पढ़ा था क्रैश कोर्स में कि men और women are just different, but somehow these differences carry traces of hierarchy to an extent that men assume superiority over women. Okay, वैसे ही black और white are just different but somehow white assume superiority and they take over. Brahmin Dalits are just different but Brahmin assume superiority, take over. ओके, तो जो ये जो ग्रुप्स हैं इनके बीच में ना सिर्फ क्वालिटेटिव डिफरेंसेस हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव नहीं है। अपर क्लास और मिडिल क्लास में क्वांटिटेटिव डिफरेंस है, बट ब्राह्मण दलित में क्वालिटेटिव है। बस एक को प्योर बोला जाता है जो कि मेजरेबल नहीं है और दूसरे को इम्प्योर जो कि अगेन मेजरेबल नहीं है। तो जो डिफरेंसेस मेजरेबल नहीं है उसमें भी अगर हायरार्की आ जाए तो हम बोलते हैं वो हायरार्की कैसी है? वो हायरार्की है आपका नॉन क्वांटिफाइबल और एस्क्रिप्टिव स्टेटस बेस्ड। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है आपका कास्ट, जेंडर, रेस, ठीक है, एथनिसिटी। तो कोई भी क्लोज समाज ओपन नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ हायरार्की ऑफ जेंडर, हायरार्की ऑफ रेस, हायरार्की ऑफ कास्ट। ओके, और क्योंकि हायरार्की आ रही है इनमें, यानी मैन ऊपर वुमेन नीचे, ब्राह्मण ऊपर दलित नीचे, वाइट ऊपर ब्लैक नीचे, कास्ट, रेस, इस वजह से एक्सक्लूड कौन हो रहे होंगे? नीचे वाले, ये एक्सक्लूड हो रहे होंगे। तो एक्सक्लूजन किसका दिखाना है? डब्ल्यू, डी और बी का, बिकॉज ऑफ दिस हायरार्की। अब यानी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है? फर्स्ट यू मस्ट एक्सप्लेन क्लोज सिस्टम क्या होता होगा। ओके, ओपन किसे बोलते होंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी क्या है? मेरिट का आना, बट मेरिट नहीं है, हायरार्की है, उस वजह से एक्सक्लूजन हो रहा है। ये स्ट्रक्चर रहेगा। फाइन, सो यू कैन इजिली शो दैट इवन इन meritocratic society we see
gender differences playing out their role in occupation, education, politics. We can see even in meritocratic society, caste differences playing out their role in politics, education, workplace. Even in meritocratic society, we can see racial identities playing out their role in politics, education, workplace. तीनों जगह segregation दिखा दो अलग अलग communities का, यानी एक community का exclusion दिखा रहे होगे, उस वजह से हम बोलेंगे this shows even meritocratic society are not purely open. Ultimately वहीं आ जाएंगे, ठीक है? तो structure, define hierarchy, define exclusion, describe how they restrict mobility and make system closed system, and then describe how system is not absolutely closed despite hierarchy and exclusion, या फिर it is not absolutely open despite merit. दोनों केस में हम ट्रांसफॉर्मेशन का रिस्ट्रिक्शन दिखा रहे हैं, ओके? नेक्स्ट 6 का बी पार्ट, एग्जामिन कार्ल मार्क्स व्यूज ऑन क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ विद रेफरेंस टू प्रोलेटेरियट। सो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो, ओके? इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि आपने क्लास इन इटसेल्फ को डिफाइन किया हो, क्लास फॉर इटसेल्फ को डिफाइन किया हो, और क्लास फॉर इटसेल्फ, क्लास इन इटसेल्फ, कोई भी क्लास इन इटसेल्फ क्लास फॉर इटसेल्फ कब बन पाती है? यानी कोई भी वर्किंग क्लास रेवोल्यूशनरी क्लास कब बनेगा? वो तब बनेगा अगर ऐसे कुछ कंडीशंस डेवलप हो जाएं, ओके? वो कंडीशंस का नाम आपको बताना चाहिए यहाँ पे। वो कंडीशंस क्या है? एक तो क्या कहते हैं आपका, प्रॉफिट सेंट्रिक सिस्टम, एक तो ये डेवलप होना शुरू हो जाए, ओके? दूसरा मैकेनाइजेशन हो जाए प्रोडक्शन सिस्टम का, और इस वजह से लोग जो हैं वर्किंग क्लास, वो दे स्टार्ट लूजिंग देयर जॉब्स, ओके? इसको हम बोलेंगे प्रोलेटेरियनाइजेशन या फिर पॉपराइजेशन। प्रोलेटेरियनाइजेशन की जगह इसको ऐसे लिखते हैं, एक्सपेंशन ऑफ रिजर्व आर्मी, ओके? पीपल हु आर लूजिंग देयर जॉब्स, हु आर अनएम्प्लॉयड और हु आर बिकमिंग अंडर एम्प्लॉयड और डूइंग पार्ट टाइम वर्क, ऑल ऑफ देम क्वालिफाई टू बी कॉल्ड एज रिजर्व आर्मी, ओके? और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और बढ़ते जाएगी, वर्कर्स के बीच के डिफरेंसेस विल स्टार्ट गेटिंग डाइल्यूटेड, उसको हम बोलते हैं होमोजेनाइजेशन। यानी स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड सब एक जैसे होने जाएंगे, बिकॉज इवन स्किल्ड वर्कर्स आर नाउ रिप्लेसेबल बाय एआई, ओके? Unskilled was easily replaced in the earlier times, okay? Then we have polarization coming out. Polarization क्या है कि बुर्जुआ क्लास एक एक्सट्रीम एंड पे चल जाएगी, दूसरे एंड पे आ जाएगी आपकी रिजर्व आर्मी, ठीक है? ये रिजर्व आर्मी अगर आपने दिखा दी इमर्ज होते हुए, then this reserve army will develop revolutionary consciousness. This will be the class for itself, and they will overthrow the capitalist. तो क्लास इन इटसेल्फ कौन है? सिंपली एक ऐसी वर्किंग क्लास विच इज वर्किंग विदाउट हैविंग कॉन्शियसनेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ओके? वर्किंग विदाउट कॉन्शियसनेस of exploitation, and this is a class which has identified the source of exploitation and clearly believes that interest of bourgeoisie and our interests do not match, our interests are completely opposite, okay? तो ये पैटर्न रहेगा आपके राइटिंग में, नेक्स्ट इज ऐसा, आप ऐसे मान के चलो कोई भी क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन नहीं है, ऑल क्वेश्चंस आर सेम। हमारे लिए कोई क्वेश्चन शायद ज्यादा, शायद हमें डेविड मॉर्गन जिंदगी भर याद रहे, लीला दुबे शायद जिंदगी भर याद रहे, एग्जामिनर के लिए दे आर जस्ट अनदर क्वेश्चन, ओके? सो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जिसको
अटेम्प्ट करने से ज्यादा नंबर आएंगे. बट यस, ऑलवेज attempt those question which are most static. और ये मैं हमेशा बोलता हूँ, मतलब पिछले क्रैश कोर्स में मैंने बोला था कि आप सबसे ज्यादा स्टैटिक क्वेश्चन जो है उसको चूज करो. जहां आपने सोचा कि डायनेमिक करने से मैं अलग दिखूंगा सबसे और मेरे नंबर सबसे ज्यादा होंगे उस वजह से, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो. ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर के पास ये सब टाइम ही नहीं है देखने का कि आप अलग हो कि नहीं बाकियों से. उसने सिर्फ देखना है क्वेश्चन का आंसर किसने दिया, चाहे स्टैटिक हो डायनेमिक. डायनेमिक स्टैटिक हमारे लिए टर्म्स होते हैं, उनके लिए सब एक ही बात है, वो उनकी जिंदगी निकल गई सोचो पढ़ के. ठीक है, तो उनके लिए सब स्टैटिक है. सो हमने सबसे स्टैटिक क्वेश्चन चूज करना है. अगर पूछा जाए डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, और दूसरा अगर चॉइस दिया जाए न्यू इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर, तो किसको चूज करेंगे? मैकेनिकल ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी. बस न्यू इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर सुन के ये कुछ नहीं ऐसा कि नहीं कुछ अलग लिखेंगे इसमें, नहीं. ठीक है, तो ये करना है हमने. हम्म. हम्म. एप्लीकेशन वाला. हम्म. हम्म. यस. हम्म. 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 जो भी जिसका कंटेंट तैयार है जो सबसे स्टैटिक है. यस. एग्जैक्टली, बहुत सब्जेक्टिव चीज है ये. हम्म. बस आप ये देखो आपके लिए इजी क्या है, आपके लिए कौन सा क्वेश्चन जो है आपने देखा हुआ है, सुना हुआ है पहले भी जिसको किया हुआ है, तभी पीवाई क्यूज करने चाहिए हमें सारे, क्योंकि फिर उसी के अराउंड क्वेश्चन हमें सारे दिखते हैं. यार ये कैसे होएगा? हाँ. हम्म. ठीक. कौन सा किया था अभी हमने? 6 का भी किया था. ठीक है, अब आते हैं 6 के सी पर. डिफरेंस बिटवीन मर्टन्स आइडिया ऑफ अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंस एंड लेटेंट फंक्शन, राइट सुटेबल एग्जाम्पल. ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पे. क्वेश्चन में दो कीवर्ड हैं, अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस एंड लेटेंट फंक्शंस. ओके, ये भी पीवाई क्यू है. इसमें हमने ना ऐसे डिफरेंशिएशन ध्यान रखना है. सोशियोलॉजिस्ट ने मैनिफेस्ट लैटेंट फंक्शंस कभी नहीं पढ़े हैं शुरू से. अगर आप देखो किसी भी सोशियोलॉजिस्ट को, दे हैव ओनली स्टडीड एंटिसिपेटेड एंड अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ थिंग्स, जिसको बाद में मर्टन नाम दे रहा है कुछ. सो एंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंस एंड अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस. ओके, सो we know very well for sure that anticipated consequence means those consequences which are well thought out before implementing the policy. किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें पता होगा कि इसका क्या नतीजा होने वाला है. बट कुछ पॉलिसीज का हमने सोचा ही नहीं होता उसका ये नतीजा हो सकता है. ठीक है, वो था अनएंटिसिपेटेड, आपने सोचा ही नहीं था उसके बारे में. ओके, यानी अनइंटेंडेड. सो मर्टन बोलते हैं कि प्रोटेस्ट, जो जो जैसे वेबर है, वेबर डिस्क्राइब्ड प्रोटेस्टेंट रेफर्मेशन. ओके, but it was the unanticipated consequence of Protestant Reformation which led to rise of rational capitalism. No Protestant could imagine
that this belief system could lead to development of capitalism. Their major idea, anticipated consequence, was to challenge the hegemony of Catholicism या चर्च. बट ये नहीं सोचा था उन्होंने कि रैशनल कैपिटलिज्म डेवलप हो सकता है. मतलब वेबर ने भी शायद एंटिसिपेट नहीं होगा, वो तो उसने अनएंटिसिपेट चीज को कनेक्ट किया उसके साथ कि इसका रिलेशन है उसके साथ. सो मर्टन एंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस को मैनिफेस्ट फंक्शन या मैनिफेस्ट कॉन्सिक्वेंस, जो कि अपने आप में क्रिटिक बन जाता है मर्टन का, क्योंकि मर्टन इज नॉट वेरी क्लियर अबाउट दीज टर्म्स. सो मर्टन इज कॉलिंग मैनिफेस्ट फंक्शन और कॉन्सिक्वेंस for the term anticipated consequence. And to describe unanticipated consequence, Merton categorized unanticipated consequence into three. This third is not so important. One, he says, latent function is unanticipated consequence of anything. Dysfunction is also unanticipated consequence of anything. Okay. So, like exam, जैसे basic example है, exam का manifest function is to select meritorious people. Latent function, that it may create inequality, which is functional to system. Okay, fine. Inequality is functional to system. People will always stay motivated to look up to those people and be like them. Okay. Dysfunction, suicide rate may increase. Now, nobody anticipated that with exam, suicide rate may increase. Had they anticipated, they may not have taken. But since it is taking place, they may regulate it with some policy. Okay. So dysfunction is also unanticipated. Latent function, yani rise of inequality, is also unanticipated. Third is non-function. Non-function मतलब कि exam is not affecting those people who are already selected. It is non-functional to them. So we can't say exam is functional to the system. We have to be very specific. It is functional to few, dysfunctional to few, non-functional to some others. तो टू द सिस्टम कुछ नहीं होता. ये चीज मर्टन बताने की कोशिश कर रहा है. ठीक है. सो जब अगर पूछा जा रहा है कि डिफरेंशिएट करना है आपको अनएंटिसिपेटेड, हाँ जी, नहीं 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 ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता. हाँ, वो कुछ आर्टिकल्स वेबसाइट्स में लिखा हुआ है, ऐसा है नहीं. मर्टन ने ऐसा कुछ नहीं दिया. रिट्जर को मानो आप, रिट्जर इज द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स इन चीजों पे. ठीक है. राइट सूटेबल एग्जाम्पल. सूटेबल एग्जाम्पल जैसे आप किसी का भी दे दो, आप चाहे रिलीजन का दे दो, एग्जामिनेशन का दे दो, लॉ का दे दो, किसी भी चीज का एग्जाम्पल आपको देना. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज हाउ वेबर्स कंसेप्शन ऑफ कैपिटलिज्म डिफर फ्रॉम मार्क्स नोशन ऑफ कैपिटलिज्म. सबसे पहले तो वी विल टॉक अबाउट डेफिनेशनल एस्पेक्ट. ओके. Marx always believed capitalism to be a mode of production, a unique historical mode of production which has occurred in history only once. समाज में evolution में एक ही बार आया. Mode of production characterized by profit accumulation. ये तो साफ है. ओके. वीवर बोलते हैं कि नहीं, कैपिटलिज्म एक स्टेट ऑफ माइंड है जो कि समाज में पहली बार नहीं, हमेशा से रहा है, समाज के बिगिनिंग से ही. और ये स्टेट ऑफ माइंड एक आउटलुक है विच इन्वॉल्व्स अनरिलेंटिंग परस्यूट ऑफ वेल्थ एज रिलीजियस ड्यूटी. ठीक है. स्पेशली आज वाला रैशनल कैपिटलिज्म तो रिलीजियस ड्यूटी से लिंक्ड है. मेनली वेबर के हिसाब से, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, इसको आप इग्नोर करो, इसको कट. ठीक है. ये मैं कट भी करवा दूंगा. वेबर के हिसाब से कैपिटलिज्म मतलब स्टेट ऑफ माइंड जिसका जिसके अंदर सिर्फ एक ही चीज है, पैसा कमाते जाओ, अनरिलेंटिंग परस्यूट ऑफ वेल्थ. ये बचपन से ही रही है समाज के. शुरुआत में पीपल यूज टू लूट अदर्स, अक्यूमुलेट वेल्थ, उसको वेबर बोलता है बूटी कैपिटलिज्म. फिर समाज के अंदर वी ऑल्सो सॉ लूटिंग रुक गई एक पॉइंट के बाद. पीपल स्टार्टेड सेलिंग सम सेलेक्ट गुड्स टू सेलेक्ट क्लाइंटेल, उसको हम सिल्क रूट कैपिटलिज्म बोलते हैं, फिर ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म. फिर एक टाइप आया पैसा कमाने का, कि पैसा देकर पैसा बनाना, लेंडिंग कर करके पैसा बनाना, ये भी एक तरीका था पैसा बनाने का, इसको पराया कैपिटलिज्म बोला. ओके. तो ये तीन तरीके हैं जिसमें
पैसा बनाते रहने की काबिलियत लोगों का स्टेट ऑफ माइंड दिख रहा है। और फिर कैपिटलिज्म आ रहा है रैशनल वाला, प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन के बाद। उसमें हमें क्या नोटिस हो रहा है? उसमें वी आर सीइंग कि भाई लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से कंसर्न्ड है, दैट दे कंसिडर मेकिंग वेल्थ एज अ रिलीजियस ड्यूटी, and therefore they want to get this blessing as much as possible, and that is how they are making wealth. तो मोटिवेशंस चेंज होते गई हैं लोगों के, ठीक है, पर वेल्थ मेकिंग परस्यूट हमेशा रहा, इंटरनल मोटिवेशन चेंज होती गई। Fine. तो ये तो डेफिनेशन में आ जाएगा। नाउ व्हेन इट कम्स टू क्या कहते हैं आपका अदर फीचर्स, मार्क्स believes capitalism as central feature of modern western society. Everything revolves around capitalism, economy is the base. Okay. Laws will be made to cater to capitalist interest. Religion will cater to the interest of capitalism, something like this. Weber बोलते हैं capitalism is only one aspect of the whole society. It is nothing but rationalization of economy. So you don't study capitalism, you study rationalization, which is bigger force. And this is a force which has actually uh, introduced principles of efficiency, standardization, कैलकुलेबिलिटी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, नॉट जस्ट इकोनॉमी। इवन इन एजुकेशन के अंदर हमारा फोकस किस पे रह गया? मार्क्स पे, जीडीपी पे, परसेंटेज पे, पढ़ाई पे नहीं। मार्क्स, जीडीपी, परसेंटेज। काम पे भी हमारा फोकस किस पे? आउटपुट कितना, इनकम कितना, मतलब मैथमेटाइज होगी हर एक चीज। ओके, काम करते हुए कैसा लग रहा है, वर्किंग एक्सपीरियंस डज नॉट मैटर। पढ़ाई करते हुए कैसा लग रहा है, एजुकेशन अपने आप में मैटर नहीं कर रही। मार्क्स उधर, इधर प्रॉफिट और रेवेन्यू। ओके, तो वेबर बोल रहा है ये जो है ना रैशनलाइजेशन एक बिगर फोर्स है जो हर एक स्फेयर को अफेक्ट कर रही है लोगों के। तो कैपिटलिज्म इज जस्ट वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ लार्जर प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन व्हिच हैज कम टू डोमिनेट मॉडर्न थॉट एंड सोसाइटी। नाउ लेट अस सी, एज आई टॉक्ड अबाउट वेबर describing different models of capitalism, unlike Karl Marx. So we can say in Marxian model of capitalism, there is only one monolithic version, okay, which is historical unit type industrial capitalism. वेबर के समय, वेबर अपने टाइम पे बता रहा है कि कैपिटलिज्म शुरू से रहा है, मल्टीपल मॉडल्स रहे हैं, ओनली द फॉर्म ऑफ मॉडल हैज चेंज्ड कैपिटलिज्म का। टुडे वाला इज रैशनल कैपिटलिज्म, पहले वाला वो ट्रेडिशनल और पराया और बूटी। मार्क्स के हिसाब से कैपिटलिज्म इज एक्सप्लेन्ड एज यूनिक हिस्टोरिकल अकरेंस, वो हम पढ़ चुके हैं, और उसके हिसाब से इट हैज ऑलवेज एग्जिस्टेड, ओनली द फॉर्म हैव चेंज। origin of modern capitalism, मार्क्स के हिसाब से the modern capitalism, industrial capitalism has originated only because of changing material conditions. ठीक है, टेक्नोलॉजी के आने की वजह से, फैक्ट्री सिस्टम के आने की वजह से वो सब हुआ है। वेबर बोलता है नहीं, टेक्नोलॉजी इज द कॉन्सिक्वेंस, उसके पीछे के जो आइडियाज हैं, विच इज टू मेक प्रोडक्शन एट हायर एफिशिएंट लेवल, ये जो आइडियाज हैं, ये आइडियाज हैं प्रोटेस्टेंट्स के, क्योंकि उनको मैक्सिमम वेल्थ चाहिए मिनिमम टाइम में, और उसको वो डायरी में उस डीड्स के तौर पे लिखना चाहते हैं, आज हमने कितना किया। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड हो रहा है उन आइडियाज की वजह से। तो प्रोटेस्टेंट आइडियाज कंबाइंड विद टेक्नोलॉजी इज लीडिंग टू राइज ऑफ रैशनल कैपिटलिज्म। सो इसका मतलब एब्सोल्यूट प्राइमेसी ऑफ मटेरियल कंडीशन is rejected by Weber, and he gives equal importance to, if not more, to the ideas. Okay. Next commentary अगर आए कैपिटलिज्म पे, तो मार्क्स बोलते हैं कैपिटलिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। वीबर बोलते हैं कैपिटलिज्म के अंदर ही सिर्फ मैकेनाइजेशन ही प्रोडक्शन का, मैकेनाइजेशन पूरे समाज में हर चीज का हो रहा है, वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ऊपर हमने डिस्कस भी किया था। एजुकेशन मैकेनाइज हो चुकी है, फूड इंडस्ट्री मैकेनाइज हो चुकी है, मतलब हर एक चीज इंडस्ट्री बन चुकी है अपने आप में। रैशनल है कैपिटलिज्म या इरेशनल है? मार्क्स के हिसाब से कैपिटलिज्म वाज कंप्लीटली इरेशनल सिस्टम, इट हैज इट्स ओन साइकिल ऑफ बूम बस्ट व्हिच इज कॉजिंग वल्नरेबिलिटीज टू मेनी वर्कर, लूजिंग जॉब्स, उनकी नीड्स खत्म हो रही हैं, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एंड दैट इज हाउ इट इज क्रिएटिंग फोर्स व्हिच इज रेवोल्यूशनरी फोर्स अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट इटसेल्फ। तो इट इज क्रिएटिंग ग्रेवयार्ड फॉर इटसेल्फ। वेबर बोलते हैं कि नहीं भाई, इट इज कंप्लीटली रैशनल बिकॉज कैपिटलिस्ट मेक मनी इन मोस्ट एफिशिएंट मैनर। तो रैशनल और इरेशनल को लेकर भी इनके बीच में डिबेट है। फिर आता है कि इसमें दो क्लास हैं मार्क्स के हिसाब से, वेबर के हिसाब से चार क्लासेस होती हैं, वो बेसिक, वो तो आप बता ही दोगे। ठीक है, मार्क्स ने एंटिसिपेट किया था फॉल ऑफ कैपिटलिज्म, वेबर ने नहीं किया था। वेबर बोल रहा था कि कैपिटलिज्म विल ऑलवेज स्टे। ओके, और अगर हम सोशलिज्म की तरफ चले गए
तो रैशनलाइजेशन या ब्यूरोक्रेटाइजेशन और स्ट्रांग हो जाएगा, रूल्स का रूल ज्यादा हो जाएगा। ओके, और वो सब बेसिक चीजें जो हम, यस, हाँ, मतलब सोशलिज्म को, यस यस, अभी भी लोग एलिएनेटेड ही रहेंगे उस हिसाब से। Explain the relevance of Merton's reference group theory. How can it help researcher to explain change? Okay. First, you must explain what is reference group and how it helps researcher to explain change. Reference group का definition देने के बाद you can talk about two types: positive reference group, negative. Okay, these are the two given by Robert Merton. Now, how this theory can explain change? See, uh, you talk about any change that has come in society, be it um, you know change of what we call as system towards becoming more open, where sections like women, dalit, peasants, minorities start finding representation. It was possible only because women compared themselves to men were reference group to women, that how men are overrepresented. Then came feminism to bring change. Dalits could find Brahmin overtly represented in administration. Then came Dalit movement. Non-Brahmins could find the same. Then comes non-Brahmin movement. Blacks could find the same with whites. That is how Black liberation movement came. Okay, and backward caste found forward caste more. That is how OBC movement developed. Okay, so reference group हमेशा रहता है, तभी चेंज आता है। वो बेसिक उसका फिलोसफी है। फाइन, तो आपने यहाँ मूवमेंट्स दिखानी है। Sanskritization was also one of the not a very organized, institutionalized movement, but it does explain change. Okay. Next, according to Mead, we play a key role in our own socialization. इसमें we must explain मीड का बेसिक थ्योरी, ये 10 मार्क्स का है। हाँ, तो मीड का बेसिक थ्योरी हमें बताना है कि दैट ही हैज एक्चुअली एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोशल सेल्फ। एक छोटा सा ड्रॉप करेंगे यहाँ पे हम इसको, क्योंकि देर इज नो स्पेसिफिक कीवर्ड अदर देन सोशलाइजेशन। तो हम बोलेंगे मीड इन हिज बुक माइंड सेल्फ सोसाइटी हैज एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ सोशल सेल्फ थ्रू स्टेजेस, एंड थ्रू स्टेजेस ओनली individuals become socialized. Okay, socialization is nothing but transformation of self from I to me. इतना बेसिक इंट्रो देकर फिर हम बताएंगे कैसे वी प्ले अ की रोल। फाइन, तो आई टू मी का जो 3 स्टेज ट्रांजिशन है, उसके थ्रू हम सोशलाइजेशन बता रहे हैं। फिर 3 स्टेज को हल्का सा ब्रीफली बता देंगे विद 1 लाइन और 2 लाइन एट मैक्स, एंड उसके बाद थर्ड स्टेज पे फोकस करेंगे, क्योंकि थर्ड स्टेज के अंदर है वी प्लेइंग की रोल इन अवर ओन सोशलाइजेशन। इट इज ओनली इन द थर्ड स्टेज दैट वी हैव स्टार्टेड टेकिंग रोल ऑफ मल्टीपल अदर्स। Okay, that means we have internalized expectation of multiple people. तो 10 या 12वीं की उम्र में ही हम समझ जाते हैं कि कौन हमें कैसे देख रहा है, किस नजर से देख रहा है, क्या सोच रहा होगा और क्या उम्मीद कर रहा है हमसे। वैसे वैसे हम बात करना शुरू कर देते हैं लोगों से अलग अलग। ओके, सो पर्सनैलिटी बोर्ड में जाकर वी विल प्ले अ की रोल इन अवर ओन सोशलाइजेशन, की नहीं, इफ ही इज आस्किंग क्वेश्चन लाइक दिस आई शुड आल्सो स्पीक लाइक दैट। ओके, if he is suggesting me this, I should respond in that manner. So we are playing key role in our socialization थर्ड स्टेज के अंदर। ओके, गेम स्टेज, यहाँ गेम स्टेज का रोल दिखा रहे हैं आपको ज्यादा। ठीक है, और कुछ एग्जांपल ड्रॉप कर देने हैं आपको। फाइन, एक एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिख दिया है, इसी से आप ड्रॉ कर लोगे, और बेसिक एग्जांपल लिखना है आपको एवरीडे लाइफ का। इन द पर्सनैलिटी टेस्ट वी मे टेक रोल ऑफ बोर्ड मेंबर्स, इंटरनलाइज देयर एक्सपेक्टेशंस, रेगुलेट अवर आई अकॉर्डिंगली। अब क्या होता है, वहां जाके हम बोलते हैं सर कैन वी टेक 10 सेकेंड्स प्लीज। ठीक है, लाइफ में कभी 10 सेकंड नहीं लिए होंगे, 1 सेकंड में बोल देते होंगे कुछ भी, लेकिन वहां जाके एकदम कैन वी टेक 10 सेकेंड्स प्लीज, थोड़ा वो मैच्योर दिखना है ना अपने को। तो वी रेगुलेट अवर आई अकॉर्डिंगली। ओके, एंड रीडायरेक्ट आवर मैनरिज्म, स्पीच, वॉल्यूम एंड टोन थ्रू सोशलाइज्ड मी। फाइन, सो यहाँ से हम दिखाते हैं कैसे हाउ वी आर प्लेइंग की रोल इन अवर ओन सोशलाइजेशन। हाँ जी। हम्म।
हम्म। वहां पे ना उसका सोशल सेल्फ जो है जनरलाइज अदर्स के कॉन्टेक्स्ट में उतना शार्पली डेवलप नहीं हुआ है जितना गेम स्टेज में हम दिखा सकते हैं। हाँ, तो सेकेंड स्टेज में सिग्निफिकेंट अदर्स हैं, तो वी आर नॉट रियली प्लेइंग की रोल इन अवर ओन सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इज वेरी ब्रॉड थिंग क्योंकि फैमिली से बाहर की बात हो जाती है। ओके। यस, थ्रू आउट द लाइफ। राइट। मल्टीपल रोल्स हम लेते रहेंगे। ओके। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन। फेमिनाइजेशन ऑफ वर्क प्लेस। अच्छा, अभी क्रैश को उसका भी टाइम है, कोई नहीं, उसका ब्रेक ले लेंगे अभी हम। फेमिनाइजेशन ऑफ वर्कप्लेस has emerged as phenomena associated with post-industrial societies. Explain the significance and challenges of the feminization of workplace. What should be the structure of this question? भाई, feminization of workplace should be defined, है ना? So, feminization of workplace should be defined. और दूसरा कीवर्ड क्या है इस क्वेश्चन में? पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये कीवर्ड क्यों है? क्योंकि यूपीएससी ने वर्क एंड इकोनॉमी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है अलग से। ओके। एंड देन comes significance of feminization of workplace and challenges। यानी इस क्वेश्चन में चार वर्ड्स अलग दिखने चाहिए। पहले तो ये दो अलग, फिर ये सब हेडिंग, फिर ये दूसरी सब हेडिंग। ओके। नाउ फेमिनाइजेशन ऑफ वर्कप्लेस मींस प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ वुमेन इनटू लेबर फोर्स। जैसे जैसे वर्क प्लेस में लड़कियों का इंडक्शन होता जाएगा यानी वर्क प्लेस फेमिनाइज होते जा रही है। ओके। और इंक्रीमेंट इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जैसे मर्जी आप बोल दो। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का मतलब क्या होता है? वो सोसाइटी जो कि बेस्ड है ऑन एक्सपेंशन ऑफ सर्विस सेक्टर। ओके। इंडस्ट्रियल इज अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, पोस्ट इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर। और तो यानी सर्विस सेक्टर के एक्सपेंशन के बाद से हम ज्यादा देख रहे हैं FLFPR को बढ़ते हुए। फाइन। हाउएवर देयर इज पैटर्न इन फेमिनाइजेशन ऑफ वर्कप्लेस। मेन एंड वुमेन आर कॉन्सेंट्रेटेड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब। फाइन, ये हम देखे हुए हैं, पता है हमें। हॉरिजॉन्टल सेग्रीगेशन एक चीज होती है, वर्टिकल होती है। डिफरेंट जॉब्स डिफरेंट पोजीशन में सेग्रीगेशन होता है, उसको ऑक्यूपेशन सेग्रीगेशन कहते हैं। फाइन, दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट अगर डाल रहे हैं तो कोई बात नहीं। सिग्निफिकेंस पे अब आ जाते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? पहला सिग्निफिकेंस है जो हमारी वर्कप्लेस पॉलिसीज हैं और बेनिफिट्स हैं, दे विल बिकम मोर फेमिनाइज्ड और मोर कंसिडरेट ऑफ women employees, which may not have been the case before. Mhm, mhm. um, हल्का सा अगर ड्रॉप करे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब, बट emerged, यस यस। हाँ, मतलब बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना ही बोलेंगे कि जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी तो हैवी इंडस्ट्री मशीन बेस्ड वर्क होता था। मैस्कुलिनाइजेशन ऑफ वर्क प्लेस के लिए ज्यादा फेवरेबल कंडीशन थी। बट विद द कमिंग ऑफ सर्विस सेक्टर, वर्क प्लेस फेमिनाइज इजिली होने लग गया क्योंकि हैवी मशीनरी का रोल नहीं है। केयर सेक्टर इमर्ज हो रहा है, which is usually seen as feminine in nature। तो significance of feminization क्या है? पहला, increasing presence of women in the workforce led to re-evaluation and improvement of workplace policies and benefits। मैटरनिटी लीव आ गया, पेरेंटल लीव का कॉन्सेप्ट आ गया, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज आ गई वर्क प्लेस में, फैमिली फ्रेंडली मतलब क्रेच सेंटर्स भी वर्क प्लेसेस में आजकल चलते हैं। एंड फैमिली फ्रेंडली पॉलिसीज, आजकल क्या होता है वर्क प्लेस में, पहले भी था, मतलब अब ज्यादा हो गया है, कि फैमिली बेनिफिट्स दिए जाते हैं एम्प्लॉयज को, नॉट जस्ट इंडिविजुअल बेनिफिट, फैमिली बेनिफिट्स। ओके। सो जैसे LTC मिलता है ब्यूरोक्रेसी में, तो वो पूरी फैमिली उसको अवेल कर रही होती है, भले एक को मिल रहा है। ओके। सो वर्क प्लेस में ये कुछ बदलाव आने लग गए जब से विमेन वर्क प्लेस की मेंबर बनने लग गई हैं। दूसरा, डाइवर्सिटी आ गई है वर्क प्लेस के अंदर। Greater gender diversity in the workplace can foster more inclusive environment. It allows for a wider range of perspectives, ideas, and approaches, which leads to better decision making and problem solving. Companies benefit from diverse
teams that reflect diversity of their customer base. अब यहाँ पे एक स्टडी है छोटी सी by Deborah Tannen. She argues that women bring special management skills which strengthen organization. कैसे? वो बोलती हैं women have greater information focus. Okay. And more readily ask questions in order to understand issue. एंड मेन जो होते हैं इमेज फोकस होते हैं कि अगर हम सवाल पूछेंगे तो हमें बेवकूफ समझा जाएगा, इसलिए सवाल ही नहीं पूछते. वुमेन जो है इंफॉर्मेशन फोकस है, दैट मींस शी वुड ऑलवेज बी रेडीली आस्किंग क्वेश्चंस टू गेट मोर क्लैरिटी सो दैट शी कुड deliver the same clarity to the customer, okay, or to the client. Men by contrast have image focus that makes them wonder ask how asking question in a particular situation will affect their reputation. Women place greater value on communication skills than men and share information more than men do. Okay. कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत बड़ा रोल होता है सर्विस सेक्टर के अंदर, एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन का भी बहुत बड़ा रोल है विद इन वर्कफोर्स. if employees are not sharing or passing the information to the concerned person, then there will be inadequately coordinated division of labor. Okay. Then hmm, hmm, yes, definitely. इंडिया के अंदर में भी आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स में भी हमने ज्यादा वही देखा था कि विमेन को ज्यादा उसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी थी, ओके, हेल्थ केयर वर्कर्स में, और उनकी सैलरीज भी बढ़ाई गई थी उस हिसाब से. All these benefits dubbed as female advantage, which generates more profit to companies because of communication skills and information focus, the two things which women does introduce into the workplace. Then leadership and representation, ये भी एक significance है feminization का. The feminization of workplace can lead to more women in leadership position. This is crucial for providing role models and breaking down stereotypes, encouraging more women to pursue leadership roles and inspiring confidence in their abilities. Women are flexible leaders and give employees greater freedom. So that means if you have women leadership, you will have more space for creativity in the workplace. But if you have male leadership, it is often seen creativity थोड़ी सी कम हो जाती है because of authority. Okay, the traditional authority associated with male leadership. Okay. Challenges क्या हैं फेमिनाइजेशन वर्कप्लेस के? वो हमने पढ़ रखे हैं बहुत, हमें ऑलरेडी मालूम है ये सब. वो सबको आपको ड्रॉप करना है एक एक एग्जांपल के साथ. ग्लास सीलिंग, फ्लोर, एलिवेटर, क्लिफ, हेरासमेंट, पार्ट टाइम वर्क, मैटरनल लीव, जेंडर वेज गैप, ये सब चीजें आप बता सकते हो. ठीक है. रेलेवेंस ऑफ डरखाइम्स थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, ये भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी. हाँ जी, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. यस, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात की जा रही है वैसे. हाँ, बट वो तो भी एग्रीकल्चरल सोसाइटी माना जाएगा. और वैसे भी ना एग्रीकल्चर को वर्क प्लेस भी नहीं बोला जाता. फील्ड को, मतलब फील्ड को नहीं बोला जाता, तभी सेक्सुअल हरासमेंट बिल लगता नहीं ना उसके ऊपर. अगर एग्रीकल्चर में सेक्सुअल हरासमेंट हो जाता है, वो काउंट नहीं होता एक्ट के अंदर, क्योंकि उसको वर्क प्लेस ही नहीं बोला जाता. ठीक है. हाँ, तो फिर रहने दो. फिर आते हैं रेलेवेंस ऑफ डरखाइम्स थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स. इसमें आपको डिवीजन ऑफ लेबर पहले डिफाइन करना है. इट इज प्योरली सेपरेशन ऑफ टास्क अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन. बेसिक्स आपको बताना है. आप डरखाइम बोलते हैं कि this specialization of tasks on the basis of specialization, division of tasks on the basis of specialization can foster interdependence between different workers, create organic solidarity. And this is the new kind of bond which may exist or characteristic of modern society. However, division of labor दो टाइप का होता है डरखाइम के हिसाब से. वन नॉर्मल, जिसकी बात अभी हमने करी, जिसमें बस बॉन्ड सीधा बन रहा है, स्पेशलाइजेशन बेस्ड. दूसरा होता है एबनॉर्मल डिविजन ऑफ लेबर. एबनॉर्मल इज ऑफ थ्री टाइप्स: एनोमिक, फोर्स्ड एंड इनएडिक्वेटली कोऑर्डिनेटेड. अगर आप ये चारों का एक एक एग्जांपल दे दो, नॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर किससे बोलते होंगे, फोर्स्ड किस सिचुएशन में दिखता होगा, एनोमिक किस सिचुएशन में दिख रहा है, इनएडिक्वेटली कोऑर्डिनेट किस सिचुएशन में दिख रहा है, तो आपने डिवीजन ऑफ लेबर के रेलेवेंस को डरखाइम के हिसाब से बता दिया है कि उस एज अ थ्योरी उसका रेलेवेंस क्या है, हमें कैसे इनएडिक्वेट कोऑर्डिनेशन दिखता है,
कैसे हमें फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर दिखता है, कैसे वी सी एनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर क्या था, व्हेन people do not find meaning in the work, when they find work uh, of very monotonous and repetitive nature. Okay, when they don't find enough returns of the contribution that they're making to the workplace, so they find meaninglessness in the work. So this brings Durkheim very close to Marx, क्योंकि मार्क्स का जो एलिनेशन है वो भी बहुत क्लोज है इसके. तो एनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर में आप सिंपली बताओगे हाउ आज की डेट के अंदर many a times we find people across different sectors, including gig economy, for example Uber driver or Swiggy driver, they are not finding meaning in their work. And इसके ऊपर कई सारे ना आर्टिकल्स आते रहते हैं. They find work not so meaningful, they don't learn anything, they just deliver the goods, and they just are asking people to rate them every day, 5 star, 5 star, 5 star. This is very continuous monotonous work. Forced division of labor, where people are not assigned role according to their merit, but assigned role according to their ascriptive statuses, caste, gender, ethnicity के basis पे, nepotism के basis पे, contacts के basis पे. Inadequately coordinated division of labor, where there is not enough coordination. So we may find post division of labor in many occupations, लाइक मैनुअल स्कैवेंजिंग में हमें दिखता है कास्ट के बेसिस पे, कभी कभी हमें लीडरशिप पोजीशंस में दिखता है जेंडर के बेसिस पे, विमेन को नहीं मिला है, मेल लीडरशिप है, ग्लास क्लिफ हमें दिखता है कभी कभी क्राइसिस सिचुएशन में आपने वुमेन को डाल दिया है. ओके, इनएडिक्वेट कोऑर्डिनेशन का भी एग्जांपल दे दो, और एक इसका सिंपल सा एग्जांपल आप दे दो. इसका सिंपल एग्जांपल क्या है, ब्यूरोक्रेसी. ठीक है, आप चाहे ब्यूरोक्रेसी के अंदर एबनॉर्मलिटीज दिखा सकते हो. इसका एग्जांपल यही है कि इफ यू सी ए पिरामिड चेन ऑफ कमांड, शुरू से लेके नीचे तक आपको ये दिखेगा, ग्रुप ए से लेके ग्रुप डी तक everyone is assigned different role in different departments, and then when all these cogs are working, there is interdependence, and this creates solidarity between the members of bureaucracy. So bureaucracy is a machine then in that case. ठीक है, अब उसमें एनोमिक आप दिखा सकते हो, in case if bureaucrats are not finding meaning in the work, or in case sometimes people are promoted according to their contact, ascriptive statuses, or caste, or if there is inadequate coordination between bureaucrats on certain policies, okay, or corruption, something like this. Okay, last is sociological review of new middle class. हाँ हाँ, बस उसको वो 15 मिनट में शुरू करवा देंगे. ठीक है, सोशियोलॉजिकल रिव्यू ऑन न्यू मिडिल क्लास, ये तो डायरेक्ट है. इसमें न्यू मिडिल क्लास का डेफिनेशन हमें ध्यान रहना चाहिए. न्यू मिडिल क्लास बेनिफिशियरी ऑफ इंडिया के केस में एलपीजी, बेनिफिशियरी ऑफ एलपीजी इज न्यू मिडिल क्लास. ओके, और ये जो लोग हैं आईटी सेक्टर वाले इंडिया के केस में, इनके कुछ फीचर्स पाए गए हैं बाय डिफरेंट स्कॉलर्स. तो वो फीचर्स क्या क्या हैं? पहला, दे आर प्रमोटर्स ऑफ हाई एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट. स्टार्टअप कल्चर के प्रमोटर हैं ये लोग. दे आर ड्राइवर्स ऑफ कंजम्पशन एज वेल एज सेविंग्स इन द नेशनल एंड ग्लोबल इकोनॉमी. So they consume a lot. They are always up for latest gadgets, okay, or novel items or goods. They always want to stay up to date, up to dated रहना उनकी एक पॉलिसी होती है. सोशल कॉम्पोजिशन क्या है इस पर्टिकुलर स्पीशीज का? ये लोग के अंदर मैक्सिमम अपर कास्ट हिंदू पाए जाते हैं. ओके, हालांकि ये क्लास पिछले ओल्ड मिडिल क्लास से काफी इंक्लूसिव है, लेकिन उसके बावजूद भी रिप्रेजेंटेशन वाइज अभी भी अपर कास्ट हिंदू का डोमिनेंस है. वो बात अलग है कि वुमेन और लोअर कास्ट भी अब दिखते हैं इसके अंदर. Majority of them are employed in service activities brought forward by LPG. So they have made shift from earlier public sector occupation to IT, and mostly found in IT, BPO, KPO. Okay. Aspirational class है ये. They want to have their own bungalow, own गाड़ी. Sometimes they would think, should we have our own bungalow? इससे अच्छा रेंट पे ना रहें. तो दे मे ऑल्सो पार्टिसिपेट अलॉट इन डिबेट, रेंट में रहना चाहिए या फिर अपना लेना चाहिए, आज की डेट के हिसाब से क्या सही है. तो ये एस्पिरेशनल क्लास है. Then if they emphasize strongly on education, they want their kids to be better educated and are ready to spend amounts they can scarcely afford on their education in English medium schools.
This is because they see proficiency in English as passport to success. They prefer simple laws and hassle-free processes. यानी इनको सब्सिडीज एक तो पसंद नहीं आएगी, टैक्स ज्यादा इनको पसंद नहीं आएगा, और इनको सिंप्लिसिटी चाहिए होगी लॉज में, आईटी इनेबल्ड लॉज हो, डिजिटलाइजेशन हो सर्विसेज का, सिंपली यूपीआई और क्विक फिक्स से सब कुछ वो हासिल कर सके जो उनको चाहिए। एक्टिव रोल है इनका सिविल सोसाइटी के अंदर, दे वुड मोबिलाइज और मोबिलाइज ओपिनियन, दे वुड इन्फॉर्म पीपल थ्रू डिफरेंट मीडिया channels or different YouTube platform what wrong is being done by government or by the particular company or by particular YouTuber. These are the people who would form opinion, generate opinion. Okay, this is all about न्यू मिडिल क्लास। ठीक है, तो टेस्ट 2 का यहीं पे आपका डिस्कशन खत्म हो जाता है। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई डाउट है आपका तो पूछो बिफोर वी स्टार्ट अवर क्रैश कोर्स क्लास। अभी कितना 3-5 हुआ है अभी तो, है ना? सही है। हाँ 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 हाँ, यस, वो तो उधर डाल सकते हैं लास्ट वाले पॉइंट में। यस, हम्म, कर सकते हो बिल्कुल। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है आपका? तो वी विल बी अपलोडिंग दिस सेम मॉडल आंसर, थोड़ा ऑर्गेनाइज करके इसको आपको शाम को मिल जाएगा।